Hello dear friends. Today I am going to discuss about the cell division. Every second of million of your bodies, every cell are dividing, repairing, tissue keeping you alive without you even noticing. Today we will explore the remarkable mechanism behind this silent miracle. Cell division serve four main roles: reproduction, growth, repair, and gamete formation. Binary fusion, mitotic, and meiosis. There are the three types of the cell divisions present. But binary fusion just for only unicellular organism like the bacteria. Second is the mitosis. This is for growth and healing and repairing. It occurs in multiple cellular organism like the human being. Third one is the meiosis. Meiosis creation of the gametes, or we can say it produce the sex cell. Meiosis require the production of the humans and animals, or we can say reproduction of the generation. So meiosis is just for only the sexual reproduction, and mitosis is just for growth and healing and repairing, and binary fusion, that is the unicellular organism dividing of the cells, or we can say cell division. Human cells 40 to 60 times divides. After this breakdown through apoptosis programs cell death. So this is the overall overview of related to the cell division. I am just going to deeply discuss about the cell division. So most cells of the human body undergo cell division, the process by which cell reproduce themselves. So the cell division is the process is reproduce themselves. The two type of cell division in this person. First one is somatic cell division, that is called mitotic division or mitosis. There are three names. Some people said the somatic division, some said mitotic divisions, or some said that is mitosis. Their three names are the same, and it's just for growth and healing and repairing of the tissues. Second है reproductive cell division. The reproductive cell division is that is called meiotic division or meiosis. This is cell division in the sexual cell, or we can say is forming the gametes for through the meiosis process. So first I'm going to discuss about the somatic cell division. What is the somatic cell division? A cell undergo the nuclear division called the mitosis, a cytoplasmic division called the cytokinesis. So these two process produce the two genetical identical cell, each with the same number and kind of chromosomes are the original cell. The somatic cell division replaced the dead or injured cell and added the new ones during the tissue growth. So in somatic division there is the two type of division. First one, that is the mitosis division in this nuclear divisions, and cytoplasmic division, that is called cytokinesis. Cytokinesis is as like the division of the cell और डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनल्स या साइटोप्लाज्म डिविजन्स. एंड अगर हम डिवीजन की बात करें न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर डिवीजन दैट इज कॉल्ड माइटोसिस के थ्रू होता है. रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन. तो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन इन दिस मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस द गैमेट्स. इसमें एक गैमेट का प्रोड्यूस होता है जिसे सेक्स सेल भी कह सकते हैं हम. तो दिस सेल नीडेड टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन. ये जो सेल्स हैं ये किसके लिए हैं? दैट इज प्रोड्यूस द नेक्स्ट सेल जनरेशन. जैसे मेल्स गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं मिलके क्या बनाएंगे? न्यू जनरेशन, जिसमें क्या मेल और फीमेल कुछ दोनों में से कुछ भी हो सकता है. तो दे आर द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है. तो दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टू स्टेप्स division, that is called meiosis. So in which the number of chromosome in the nucleus is reduced by half. तो meiosis process के अंदर क्या है? नंबर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड कितने रहेंगे? हाफ रहेंगे, 23 हैं, जिसे एन सेल बोलते हैं. और जब हम बात करें माइटोसिस की, माइटोसिस ये किसके लिए है? रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, या हम बात करें रिप्रोडक्शन ऑफ द अदर टाइप ऑफ सेल्स अपार्ट फ्रॉम द सेक्सुअल सेल. सो दिस कम्स अंडर द माइटोटिक डिवीजन. तो इसमें क्या है? हमारे जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे रहते हैं? डिप्लॉयड रहते हैं. इसमें क्या है? लगभग टू, जिसे हम 2n सेल बोलते हैं. और मियोसिस के अंदर क्या है? ओनली n सेल रहती हैं. द सेल साइकिल इज सीरीज ऑफ चेंजेस एज सेल गोज थ्रू फ्रॉम द टाइम्स इट इज फॉर्मली until it reproduce. There are two types periods of the cells. First interphase, second is the cellular
डिवीजन। तो यहाँ पे अगर हम सेल साइकिल की बात करें, बिकॉज ऑल द सेल जो डिवीजन प्रोसेस है वो एक क्या सेल साइकिल में अंदर चलता है, यह हमारे साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें क्या ऑल द स्टेप्स इस सीक्वेंस के थ्रू चलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेल साइकिल बोलते हैं। तो जो हम ओल्ड सेल्स है वहाँ से न्यू सेल्स का जनरेशन होना है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड सेल साइकिल। तो यहाँ जो सेल साइकिल टू टाइप पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन दैट जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। सेकंड जो रहता है वो जो है सेल डिवीजन, और वी कैन से माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज इट यूजली इन विच द सेल ग्रो एंड कैरी ऑन इट्स यूजुअल एक्टिविटीज़। इस इंटरफेज के अंदर क्या मेनली सेल क्या करती है, ग्रो करती है, अपने ऑर्गेनल्स की ग्रोथ कर रही है, अपने साइटोप्लाज्म की ग्रोथ कर रही है, अपने हम बात करें जो अंदर डीएनए है उसकी ग्रोथ कर रही है। ये सब प्रोसेस किसके अंदर है, इंटरफेस के अंदर होती है। अगर हम बात करें उसके बाद डिवीजन होना स्टार्ट होता है। जो डिवीजन होना स्टार्ट हो रहा है तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जो फेजेस हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे, सेल डिवीजन के अंदर। उन सारी सेल डिवीजन जो है उसके फेजेस को हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज बोलते हैं। तो ड्यूरिंग विच इट डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। ये एक ऐसी जो प्रोसेस है जिसमें क्या है एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज बोलते हैं। और जो एक सेल प्रिपेयर हो रही है डिवीजन के लिए, अपने ऑर्गेनल्स को इंक्रीज कर रही है और अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर रही है, अपना सेल साइज इंक्रीज कर रही है, अपने डीएनए को इंक्रीज कर रही है, तो वो सारी जो प्रोसेस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, इंटरफेस के अंदर होती हैं। तो देयर आर द टू पीरियड्स ऑफ सेल साइकिल के अंदर, फर्स्ट है इंटरफेस, सेकंड वन इज द सेल डिवीजन। तो दिस इज ओवरऑल साइकिल जिसे हम बोल सकते हैं माइटोटिक जो सेल डिवीजन है जिसके अंदर, या वी कैन से हाँ, कौन से वाला जिसमें हम बात करें माइटोटिक और क्या है इंटरफेज, दोनों इसके अंदर फेजेस परसेंट हैं। तो जो इंटरफेज हैं जो ब्लू कलर से जो थोड़ा सा दिखाया गया है पर्पल कलर के अंदर, तो वो जो इंटरफेज जो है वो कौन कौन सी है, जिसमें G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। G1 फेज जो है इसमें मेनली क्या होता है, जो सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं बढ़ जाती हैं, बहुत फास्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, डुप्लीकेट्स ऑर्गेनल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स बढ़ते हैं, सेंट्रोसोम फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओवरऑल क्या है यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ सेल जो है अंदर ऑर्गेनल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज, इट टेकिंग टाइम 8 to 10 आवर्स। तो 8 to 10 आवर्स के अंदर ये सब चीज़ें, ये जो प्रोसेस जो है इसके अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो क्या है, G1 फेज है। सेकेंड जो फेज आता है दैट इज द S फेज, इट प्रेजेंट बिटवीन द G1 फेज एंड G2 फेज। और इस फेज को हम S फेज बोलते हैं। एस फॉर जहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशंस के लिए है, तो यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेट होना स्टार्ट होता है। तो जो G1 फेज है वहाँ पे डीएनए को छोड़ के सब चीज़ों को रिप्लिकेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होता है। बट इंटरफेज के अंदर मेनली जो है, या वी कैन स्पेसिफिकली वी कैन से एस फेज के अंदर डीएनए रिप्लिकेशन होता है। उसके बाद फेज आती है G2 फेज। G2 फेज जो दैट इज फेज प्रेजेंट बिटवीन द एस फेज एंड माइटोटिक फेज। तो इनके बीच का जो इंटरवल है दैट इज 4 to 6 आवर। तो वो जो फेज है दैट इज द G2 फेज है। इसमें सेल ग्रोथ होती है कंटिन्यूसली, एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, सेंट्रोसोम रिप्लिकेशन कंप्लीटेड हो जाता है। ये सारी प्रोसेस जो है G2 फेज के अंदर, यानी कि G1 फेज एंड G2 फेज के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ G1 फेज के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड रिप्लिकेशन है, ऑर्गेनल साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स सेंट्रोमियर रिप्लिकेशन बिगन्स हो रहा है, और इधर कंटिन्यूस चलता है दिस प्रोसेस। तो सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता रहता है, एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इसके अंदर, सेंट्रोसोम रिप्लिकेशन कंप्लीटेड हो जाएगा। सेंट्रोसोम का रिप्लिकेशन इधर कंप्लीट है। नेक्स्ट वन जो है फेज स्टार्ट होते हैं दैट इज़ द माइटोटिक फेज। यहाँ तक जो फेज हैं G1 से लेके G2 तक की फेज जो हैं, ये इस फेज के अंदर क्या है, सेल प्रॉपरली क्या है अपने आप को मैच्योरिटी में आ जाती है डिवीजन के लिए। तो वहाँ फिर उसके बाद क्या डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो जो डिवीजन होना स्टार्ट होता है वो कौन सा है, इसमें फर्स्ट स्टेज आती है दैट इज़ प्रोफेज, उसके बाद सेकंड स्टेज है मेटाफेज, थर्ड वन इज़ द एनाफेज एंड लास्ट वन दैट इज़ द टीलोफेज जो है। तो यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, दीज ऑल फेज इज कॉल्ड इन combined माइटोटिक फेज, या वी कैन से माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल। तो नेट सेल अगर हम बात करें तो डिवीजन की, सेल डिवीजन की जो
सेल डिवीजन जो है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक डिवीजन जो है, सोमेटिक सेलुलर डिवीजन। तो इसके अंदर दो फेज हैं, इंटरफेज एंड सेकंड इज माइटोटिक फेज। इंटरफेज में थ्री फेजेस हैं, जिसमें G1 फेज है, S1 S फेज है एंड G2 फेज है। जो थ्री फेजेस इसके अंदर प्रेजेंट इंटरफेज, ये ऑल फेजेस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज है, डीएनए रिप्लिकेशन है, अदर सेल एंजाइम्स, न्यूक्लियस, एवरीथिंग is going to replicate, and they making maturity of the cells, and they ready making the ready to cell for the माइटोटिक डिवीजन। उसके बाद स्टार्ट होता है सेलुलर डिवीजन, जिसमें प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज है। देर आर द फोर फेज इन दिस वन। तो ओवरऑल इन सबको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल, और दिस इज कॉल्ड सोमेटिक डिवीजन ऑफ द सेल। तो फर्स्ट फेज इंटरफेज। इंटरफेज हम बात करें जिसमें क्या, ड्यूरिंग द इंटरफेज द सेल रिप्लिकेशन इट्स डीएनए, it also produce additional organelles and cytosolic components in anticipation of the cell division. Interphase is a state of high metabolic activity but cell does not grow. Interphase consists of three phase, जिसमें interphase के अंदर we can say G1 phase, it is the interval between the mitotic phase and S phase. Already I have discussed second phase, that is the synthesis phase we can say, यानी कि DNA replication occurs, and G2 phase is the interval between the S phase and the mitotic phase है। तो G1 S and G2 phase, these are the comes under the interphase. Next one is the G0 phase, that is also present in the cell cycle. The cells that remain in G1 for a very long time prephase prephase डिस्ट्रिक्ट नर्व टू डिवाइड अगेंस्ट। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो क्या है, डिवाइड नहीं होती हैं, बार बार कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं हो रही हैं। ऐसी जो सेल हैं उनको हम किस में रखें हैं, G0 फेज में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि नर्व सेल हैं, दैट इज़ द नॉट वेरी अर्ली डिवाइडिंग ऑफ द सेल्स। सो ये क्या है, बहुत लॉन्ग पीरियड में, या भी कैसे न के बराबर डिवाइड होने वाली जो सेल्स हैं, वो सेल को किसके अंदर रखा है, G0 फेज है उनकी। तो जीरो फेज के अंदर रहती हैं ऑलवेज वो। तो देर आर द इंटरफेज में G1 G2 एंड S फेज रहेगा, और जीरो फेज जो दैट इज दो सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग कंटिन्यूसली, दैट इज द G0 फेज के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे सेल डिवीजन का हम जो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज सेंट्रोसोम जो है वो किस प्रकार से है। तो सेंट्रियोल फॉर्मेशन यहाँ होना स्टार्ट होता है, पेरिसेंट्रियल मटेरियल उसके आसपास प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन है, न्यूक्लियर डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है, क्रोमेटिन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड साइटोसेल्स। दीज आर द वी कैन से सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो प्रेजेंट है, जो डिवीजन होगा तब किस प्रकार से होता है, वो सब यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट वन G1 फेज। तो फर्स्ट फेज है G1 फेज जो है, उसके अंदर क्या, इट इज़ द इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड द S फेज। The cell is metabolically actively, it replicate most of the organelles and cytosolic component but not its DNA replication of the centromeres also begin in the G1 phase. तो this phase के अंदर क्या है, metabolic activities होती हैं, replicate होता है most of the organelles but DNA यहाँ पे replicate नहीं होता है। This is the main things in the G1 phase. नेक्स्ट है एस फेज, द इंटरवल्स बिटवीन G1 एंड G2 लास्ट अबाउट 8 आवर्स, लगभग 8 आवर्स का है, और यहाँ मेन चीज वो है डीएनए रिप्लिकेशन। द टू आइडेंटिकल सेल फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन लेटर इन द सेल साइकिल विच हैव द सेम जेनेटिक मटेरियल्स। तो हियर द डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स, दिस इज द एस फेज। Next one is the G2 phase. It is the interval between the S phase and the mitotic. In mitotic phase, at last 4 to 6 hour, it taking 4 to 6 hour times. During G2, cell growth continuously, enzyme and other proteins are synthesized in replication for cell division, and replication of the centrosome is completed. So this G2 phase के अंदर क्या है, centrosomes is completed, replication, cell division also continuously, growth, enzymes and other proteins synthesized. So this is the G2 phase. It taking 4 to 6 hour. उसके बाद है सेलुलर न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स न्यूक्लियर कैसे डिवाइड हो रहा है और दो सेल्स के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस जो है वो। तो माइटोसिस आर द नोटेड अर्लियर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इनटू टू सेपरेट न्यूक्लियाइज। तो यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना किसका, टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के टू सेट यानी कि 46 पेयर जो है वो दो डिवाइड हो जाएंगे सेल्स के अंदर, सेपरेट न्यूक्लियाई उनका होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस, यानी कि वन सेल डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट सेम cell, or we can say parent cell, same as the parent cell dividing into two cell, that is called mitosis, जिसमें क्या
chromosomal is the same as the parent cell, or we can say organelle structures, everything is the same from the parent cell. That is called mitosis. The process result in the exact practitioner of the genetic informations. तो यहाँ पे क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या है, द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज. तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने रिसर्च किया, क्या इनके प्रोसेस जो है इस न्यूक्लियर डिवीजन को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया. दैट इज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट वन टीलोफेज. तो फर्स्ट दैट इज द प्रोफेज. प्रोफेज के अंदर क्या, ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज द क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस एंड शॉर्टन इनटू क्रोमोसोम. सबसे पहले क्या है, जो प्रोफेज है, क्रोमेटिन जो फाइबर्स हैं वो डेंस होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर हैं वो. तो कंडेंस प्रोसेस में प्रिवेंट द एंटेंगलिंग ऑफ द डीएनए लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड्स एज दे मूव ड्यूरिंग द माइटोसिस. तो यहाँ पे क्या है, जो कंडेंसेशन प्रोसेस है, प्रिवेंट द इंटेंगलिंग ऑफ द लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड्स एज दे मूविंग ड्यूरिंग द माइटोसिस के दौरान जो मूवमेंट हो रहा है. तो दैट इज द प्रोफेज जो है यहाँ पे. अर्ली फेज दिस क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस एंड शॉर्टन इनटू द क्रोमोसोम्स, उसको हम प्रोसेस क्या बोलते हैं, दैट इज द प्रोफेज. नेक्स्ट दिस इज द प्रोफेज. तो प्रोफेज के अंदर क्या है, माइटोटिक्स जो स्पिंडल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है. क्रोमोसोम जो फॉर्मेशन जो अर्लियर जो है सेंट्रोमियर फॉर्मेशन है, और दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स. और सेंटर में जो पोर्शन है जिसमें क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर जो है. तो 2 क्रोमेटिड्स जॉइंट्स एट द सेंट्रोमियर लेवल्स पे. तो दिस आर द क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर. तो इधर अगर हम देखें लेट स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, फिर लेट स्टेज के अंदर काइनेटोकोर जो है फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है. प्रोसेस जो है यानी कि हमारे जो स्पिंडल्स हैं वो इसको पुल करना स्टार्ट कर देंगे अपने न्यूक्लियस वाली साइड. दैट इज द माइटोटिक स्पिंडल्स जो प्रेजेंट है वो इसको पुल करेंगे. दैट इज कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, और फ्रेगमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर इनवेल्व फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर, लेटर के अंदर है. Next, metaphase. Metaphase. During this phase, the microtubules of the mitotic spindles align the centromere of the chromatid pair at the exact center of the mitotic spindles. तो यहाँ जितने भी सेंट्रोमियर्स हैं उनको अलाइनमेंट में आ जाते हैं, यानी कि दोनों साइड से पुलिंग ऑफ द जो सेंट्रोमियर्स होना स्टार्ट होता है, या वी कैन से दोनों साइड से फोर्स लगती है जिसमें थ्रू द माइटोटिक स्पिंडल्स जो है फोर्स होती है. और जितने भी सेंट्रोमियर्स हैं वो किसी अलाइनमेंट में आ जाते हैं, दोनों सेंटर में हो जाते हैं, ना तो राइट में जाएंगे ना लेफ्ट में जाएंगे, बिल्कुल सेंटर्स में जाते हैं. दोनों तरफ से बराबर जो पुलिंग स्ट्रेंथ लग रही है उसकी वजह से. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस मिड पॉइंट रीजन इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन जो है. तो दिस इज़ द मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या है, दोनों साइड्स में से जो स्पिंडल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं अपनी अपनी साइड्स को इनको ले जाने के लिए, जो सेंट्रोमियर्स को. तो यहाँ जो है प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट जो फॉर्मेशन, एक सेंटर के अंदर अलाइनमेंट में आ जाएंगे सारे के सारे सेंट्रोमियर्स. नेक्स्ट वन इज द एनाफेज. एनाफेज. ड्यूरिंग दिस फेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट सेपरेटिंग द टू मेंबर ऑफ द ईच क्रोमेटेड पेयर. यहाँ दोनों क्या हैं, स्प्लिट हो जाते हैं सेंट्रोमियर्स, और सेपरेटिंग हो जाएंगे दो मेंबर ऑफ द ईच क्रोमेटेड पेयर जो हैं विच मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल. तो दे आर द मूविंग अपोजिट पोल ऑफ द सेल जो है मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा. किसका, सेंट्रोमियर स्प्लिट सेपरेटिंग द टू मेम्ब्रेन ऑफ द ईच क्रोमेटेड पेयर. तो वहाँ पे क्या है, जो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा एंड क्रोमेटेड पेयर्स जो बने हुए हैं वो क्या है, मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल होना स्टार्ट हो जाएगा. वन सेपरेटेड द क्रोमेटेड आर टर्न्ड क्रोमोसोम. तो जो सेपरेट जो है क्रोमेटेड्स आर टर्म्ड एज क्रोमोसोम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम फॉर्मेशन बोलते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं. एज द क्रोमोसोम आर द पुल्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको पुल कर रहे हैं माइटोटिक स्पिंडल्स. ड्यूरिंग द एनाफेज दे अपीयर वी शेप. तो ये वी शेप की हो जाती है जब पुल्ड हो रहे होते हैं किसके थ्रू, माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू. तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो वी शेप की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अपीयरिंग द वी शेप जो है एनाफेज के अंदर हमें दिखाई देंगे. माइटोटिक जो है क्रोमेटिड जो है वो किस प्रकार के वी शेप के हो जाते हैं, दैट इज द एनाफेज प्रोसेस. तो दिस इज द वी शेप फॉर्मेशन जो है यहाँ आपको दिखाई दे रही है. एनाफेज के अंदर जो है क्रोमोसोम्स जो है लाइक वी फेज जो है फॉर्मेशन हो रहा है. देन नेक्स्ट वन है telophase. The final stage of the mitotic telophase begins after the chromosomal movements stops. The identical set of the chromosomes now at the opposite pole of the cell uncoil and revert to the थ्रेड लाइक क्रोमेटिन्स फॉर्म्स. तो यहाँ पे क्या, टीलोफेज के अंदर फाइनल स्टेज ऑफ माइटोटिक टीलोफेज बिगिन आफ्टर क्रोमोसोमल मूवमेंट स्टॉप्स. तो मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वो स्टेज जो दैट इज द टीलोफेज है, यानी कि अपने अपने गोल्स पे पहुँच चुके हैं
जो क्रोमेटिन जो हैं वो मटेरियल्स, और द क्रोमोजोम्स नाउ एट अपोजिट पोल ऑफ द सेल अनकॉइल एंड रिवर्ट टू द थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फॉर्मेशन, अनकॉइल्ड हो जाएगा और थ्रेड लाइक फॉर्मेशन बन जाएगा, न्यूक्लियर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, अराउंड इज द क्रोमेटिन मास, न्यूक्लियोलाई रीअपियर्स इन द आइडेंटिकल न्यूक्लियाई एंड द माइटोटिक स्पिंडल्स ब्रेकअप, तो माइटोटिक स्पिंडल्स भी ब्रेकअप हो जाएगा वहाँ पे, और उसके बाद क्या है, न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितने भी क्रोमेटिन जो हैं वो किसके अंदर, क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो गए हैं, और वो क्या है, जो कोल्ड जो अनकोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, तो वे यानी कि न्यू सेल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ द टीलोफेज। तो दिस इज़ द टीलोफेज प्रोसेस। यू नेक्स्ट वन है, इन दिस डायग्राम्स के थ्रू दिखाया गया किस प्रकार से प्रोसेस जो है स्टार्ट होती है और कैसे क्या है डिवाइड होते जा रहे हैं सेल। और उसके बाद अब जो न्यूक्लियर इसका डिवीजन हमारा हो गया कंप्लीट, देन जो डिवीजन किसका होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं उसको, साइटोकाइनेसिस। तो डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स इन टू आइडेंटिकल सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स दो आइडेंटिकल सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो जो डिवीजन है वो कहाँ स्टार्ट होता है, लेट फेज ऑफ द एनाफेज, जो अभी लास्ट में जो एनाफेज हमने पढ़ी है टीलोफेज से पहले, वहाँ तब से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो द फॉर्मेशन जो है दोनों सेल्स के जो है सेंटर वाले पोर्शन पे क्या है, क्लीवेज फ्यूरे लाइफ से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। द क्लीवेज फ्यूरो जो है वो इज द स्लाइट इंडेंटेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ से क्या हो जाएगा, पिट लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि अंदर की तरफ पिचक जाएगा, थोड़ा सा धस जाएगा, एंड दिस कंप्लीटेड आफ्टर द टीलोफेज, धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा, और क्या है, दोनों न्यूक्लियस को सेपरेट सेपरेट कर देगा, और न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स आल्सो डिवाइडेड एंड मेकिंग द टू सेल। तो जैसे क्लीवेज जो फ्यूरो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, बिगन्स एट द लेट एनाफेज प्रोसेस से, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज फ्यूरे, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। Thank you. So this is the completed our mitotic cell division, yeah we can say somatic division of the cell. So my question about that lecture, so what is the difference between the apoptosis and necrosis, apoptosis and necrosis? So give answer about this apoptosis and necrosis. Thank you. Bye bye.